Hello and welcome. This is part 4 of the chapter Challenges to Nation Building. In the third part of this chapter, I explained about the integration of princely states. A few states that I was explaining were Travancore and Junagadh, Bhopal, and Jodhpur. Now, two states that were there left at the time of independence to be integrated was Hyderabad and Manipur, which is also explained in your book. So, in this video, I'm going to discuss the integration of these two states and the role of Sardar Patel in the integration of princely states in India. So, let's begin. Integration of Hyderabad. Hyderabad was the largest princely state of India, lying towards the Deccan Peninsula, Deccan Plateau. If you see the situation, you can see here Hyderabad. Okay, so this was the largest princely state of India, and it was one of the richest princely states also. So the Nizam of Hyderabad, this person whom you can see in this picture, Nizam of Hyderabad was Mir Usman Ali. Okay, and he was one of the richest persons of the world at that time. He was among the top 10 richest person according to Times magazine at that time. Hyderabad comprised of some parts of present day Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh, and it had its own army. It had its own air communication system, then a postal system. So it was a full-fledged state at that time. So at the time of independence, the Nizam of Hyderabad expressed his desire to become independent. So after so many consultations and talks with Sardar Patel, he agreed to sign a standstill agreement with the government of India in November 1947. So, if you see the people of Hyderabad, the population of Hyderabad demography, then you come to know that it was a state where 85% of the population was Hindu. Okay, so the Muslims were actually in minority, but the government, the administration and the politics, on both these things, the Muslims had a stronghold. So the politics, the administrative machinery was all in the hands of the Muslims. Fine. So the Hindu population was, though it is was in majority, but it was not well represented. The powerful section was the minority section, the Muslims. Okay, and apart from this, when I say that the Nizam had its own forces, there were 24,000 troops with the Nizam. But apart from this, there was a paramilitary force. A paramilitary force which was called the Razakars. Razakars. Now, who were these Razakars? Now, the Razakars were the paramilitary force of the Muslim aristocracy. Okay, so these Razakars were about 2 lakh in number. तो 2 लाख रजाकार्स वहाँ पर थे और ये एक तरह से पैरामिलिट्री फोर्स थी जो कि मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी ने वहाँ की क्रिएट की थी. तो इन रजाकार्स की वजह से ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा था. तो आइए देखते हैं कैसे हुआ था. तो निज़ाम ने जो है, ये जो निज़ाम थे, इन्होंने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया इन नवंबर 1947. What was this standstill agreement? A standstill agreement means कि we will maintain the status quo. ठीक है, तो निज़ाम वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे जो कि नवंबर 1947 में था. और नवंबर 1947 में स्टेटस को क्या था कि जो हैदराबाद है वो ना तो पाकिस्तान का पार्ट है और ना वो इंडिया का पार्ट है. ओके, तो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और ये साइन किया गया था 1 साल के लिए. फॉर 1 ईयर इट वाज साइन. ओके,
So after this, both the parties, the government of India and the Nizam, blamed each other of violating the standstill agreement. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि निज़ाम अपनी फोर्सेस बढ़ा रहे थे उस टाइम, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था एज पर द अग्रीमेंट. निज़ाम वाज इन कांस्टेंट टच विद पाकिस्तान. वो पाकिस्तान से नेगोशिएट कर रहे थे उस वक्त. पाकिस्तान को वो मदद कर रहे थे. ही वाज सेंडिंग मनी टू पाकिस्तान, ही वाज रिसीविंग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस फ्रॉम पाकिस्तान. तो ये सारी चीज़ें हो रही थी. और निज़ाम ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने हैदराबाद का इकोनॉमिक ब्लॉकेट करके रखा हुआ था, विच वॉज अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट. सो बोथ द पार्टीज ब्लेम्ड ईच अदर ऑफ वायलेटिंग द स्टैंडस्टिल अग्रीमेंट. इस बीच क्या होता है कि हैदराबाद में एक पॉपुलर रिवोल्ट होती है अगेंस्ट द रूल ऑफ निज़ाम. ये रिवोल्ट क्या था, आपने पढ़ा होगा शायद और ये तो सुना होगा, तेलंगाना वाज क्रिएटेड एज सेपरेट स्टेट. तो ये जो तेलंगाना मूवमेंट था ये उस समय शुरू हो गया था. तो वहाँ की जो पीजेंट्री थी, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, मजदूर थे, इस क्लास ने निज़ाम के रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट किया. और ये जो रिवोल्ट थी इसको लीड कर रहे थे कम्युनिस्ट. Okay, so this popular revolt was led by the communist and the Hyderabad Congress. Okay, तो इस रिवोल्ट को निज़ाम सप्रेस करने में लग गए और उन्होंने सप्रेस इसको किया थ्रू द रजाकार्स. तो इस सप्रेशन में रजाकार्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और रजाकार्स ने बड़े रूथलेसली इस रिवोल्ट को सप्रेस करने का काम किया, जिसमें वो प्रॉपर्टी को जलाना, लूटना, मर्डर, ओके, women were raped, so all these things were being done. तो ये धीरे धीरे ये जो सप्रेशन था, it took the form of a communal right. ओके, तो ये इस तरह से इसको ये टर्न हो गया, जिसमें बहुत लार्ज स्केल पे जो रजाकर्स थे वो हिंदू पॉपुलेशन को वहाँ की मार रहे थे, लूट रहे थे और उनकी प्रॉपर्टी को जला रहे थे. तो व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम टू नो अबाउट दिस, जब दिल्ली तक ये बात पहुंची, देन सरदार पटेल डिसाइडेड टू टेक मिलिट्री एक्शन. और सितंबर 1948 में, द डेट वाज 13 सितंबर 1948, 13 सितंबर 1948 को इंडियन फोर्सेस वहां पे भेजी गई. इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो. ओके, तो ऑपरेशन पोलो के तहत इंडियन फोर्सेस वहां पहुंची एंड 3 to 4 डेज के आर्मी एक्शन के बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया, हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ India. After that, the government of India made Nizam as the governor of the state of Hyderabad. तो ये है हैदराबाद की कहानी. इसके बाद एक कमीशन भी बनाया गया था जिसने इस सारे जो उस समय किलिंग्स हुई थी उसको प्रोब किया था. जो आर्मी का रोल था इसमें उसको प्रोब किया था और उसकी रिपोर्ट बहुत बाद में 2017 में रिपोर्ट पब्लिक की गई थी. तो ये सारी चीज़ें बाद की कहानी है, उसके बाद की पॉलिटिक्स है. फिलहाल हैदराबाद जो सबसे बड़ा स्टेट था इंडिया का, वो इस तरह से इंडिया में आया इन सितंबर 1948. नाउ अनदर स्टेट इज मणिपुर. मणिपुर को अगर आप मैप में देखना चाहें तो ये रहा मणिपुर. Okay, so it was a bordering state, it was a border state and a large part of the boundary of Manipur was with Burma. तो ये बहुत साल तक एक इंडिपेंडेंट किंगडम रहा, फिर ये ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट बन गया था और उसके बाद जब ब्रिटेन इंडिया छोड़कर गए, ब्रिटिश इंडिया छोड़कर गए, देन ऑन 15 अगस्त 1947 इट बिकेम इंडिपेंडेंट अगेन टू डिसाइड व्हाट इट वांट्स. तो 15 अगस्त 1947 के पहले ही जो मणिपुर के राजा थे बोधा चंद्र सिंह, he had signed the instrument of accession in favor of India, surrendering 3 things. Okay, one was foreign affairs or defense and communication. Okay, so while signing the instrument of accession, he surrendered these 3 subjects to the Union of India. बट उसके बाद और उन्होंने अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे, इस शर्त पे ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था. इस कार्टून में भी आप देख सकते हैं कि सरदार पटेल उनसे वही कह रहे हैं कि आप उठिए मत, मतलब
आपका जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो आप अपने पास रखिए, लेकिन बाकी चीज़ें मुझे दे दीजिए। तो उसके बाद फिर मणिपुर में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और उसने मणिपुर के लिए अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। एक वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनी जिसका इलेक्शन हुआ। तो द थिंग्स वर गोइंग बियॉन्ड द कंट्रोल, और उसके इसकी वजह से सरदार पटेल लगातार प्रेशर बनाना उन्होंने शुरू किया ऑन द महाराजा, ऑन बोधा चंद्र सिंह, टू साइन द मर्जर अग्रीमेंट विद इंडिया। और प्रेशराइज करके कोअर्जन से फिर वो जो महाराजा वॉज मेड टू साइन द मर्जर अग्रीमेंट विद इंडिया इन सितंबर 1949। तो 21 सितंबर 1949 को मणिपुर ने मर्जर अग्रीमेंट इंडिया के फेवर में साइन किया, एंड आफ्टर दैट इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज नॉट कंसल्टेड. So without consulting the legislative assembly, popularly elected legislative assembly, महाराजा had to sign the merger agreement with India. इसमें एक चीज़ और आप लोगों के ध्यान रखने की है कि मणिपुर was the first state of India where elections were conducted on the basis of universal adult franchise. ओके, तो कभी हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा. इट वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया वेयर इलेक्शंस वर हेल्ड. यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी ना, ये बताया मैंने आपको, तो इसके लिए यहाँ पे इलेक्शन कराया गया था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. बट इस लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट नहीं किया वाइल साइनिंग द मर्जर एग्रीमेंट विद इंडिया. तो ऐसा कहा जाता है, मणिपुर के लोग कहते हैं कि हमारे साथ चीटिंग की गई, हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीटिंग की और इस तरह से हमको धोखे से भारत में मिला लिया. खैर जो भी है, मणिपुर इंडिया का पार्ट बना और उसके बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहीं, बट आज के इस समय में more or less the problem has been resolved. So now we go on to another topic that is added up, that is Sardar Patel and the integration of India. अब जैसा कि आप लोग पूरी कहानी अब तक इंटीग्रेशन की देख चुके हैं, the most important role in this was played by Sardar Vallabhbhai Patel, and we cannot even imagine this task that it would have been finished without him. So in by profession he was a lawyer, and he joined the Indian national movement under the influence of Gandhi ji. गांधी जी के साथ ही इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, that was the खेड़ा सत्याग्रह. देन उसके बाद बारडोली सत्याग्रह एंड बोरसाद में एक सत्याग्रह हुआ था, बोरसाद सत्याग्रह. ये सब में स्पेशली गुजरात में ही वॉज लीडिंग नेशनलिस्ट, और वहाँ पर ये बहुत सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते थे. उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया. After India got independence, he became the first deputy prime minister and the home minister of the country, and he took upon himself the task of integrating the princely states. तो 565 princely states को integrate करने का क्रेडिट जो होता है वो सरदार पटेल को ही जाता है, with his firm belief, clarity in vision, और बिल्कुल with a strong hand, उसके साथ कोई compromise नहीं. The one task that is there and that has to be achieved, this was his mission and aim. He is known as the Iron Man of India because of the his firm hand, because of the way he did this task. Okay, उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं कि 3 स्टेट्स के साथ मेजरली प्रॉब्लम थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, और उसका भी इंटीग्रेशन सरदार पटेल ने अपने लाइफ टाइम में ही अचीव किया. ही वॉज, जैसे आप लोग ने इस चैप्टर में हैदराबाद और जूनागढ़ की कहानी तो पढ़ ली है, कश्मीर की कहानी आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे. कश्मीर के ऊपर कहते हैं कि सरदार पटेल, देयर वाज सम डिस्प्यूट विद अदर लीडर्स ऑन द इशू ऑफ कश्मीर. एक्चुअली सरदार पटेल जब वहाँ पे इंडियन आर्मीज भेजी गई थी कश्मीर में कि पाकिस्तानी जो इंट्रूडर्स आ गए थे उनसे लड़ने के लिए, तो सरदार पटेल वॉज इन फेवर कि इनको पूरी तरीके से वापस धकेला जाए और पूरा का पूरा कश्मीर इसमें ले लिया जाए. एंड दूसरी चीज़ ये थी कि सरदार पटेल वॉज नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग दिस मैटर टू यूनाइटेड नेशंस. तो इन दो चीज़ों के ऊपर उनका थोड़ा सा मतभेद लीडर्स के साथ, ऐसा कहा जाता है कि हुआ था. बट
over and above all, it is the government that takes the decision, and he was very much a part of the government. He was the home minister of the country. तो जो भी डिसीजन था उसमें वो भी उनकी भी सहमति अल्टीमेटली मानी जाती है. तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि अगर सरदार पटेल अकेले के हाथ में ये डिसीजन लेना होता तो शायद कश्मीर की प्रॉब्लम अभी तक नहीं चलती होती और वो कश्मीर की प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व कर ली जाती. तो दीज आर इफ्स एंड बट्स ऑफ हिस्ट्री जिसका कोई जवाब नहीं है और जो है सो है. तो कश्मीर के इंटीग्रेशन को लेके थोड़ा सा डिफरेंस था. हाउस एवर हिज रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी डिनाइड एट ऑल, and the entire credit of creating the boundaries of India, creating that India, goes to one man only, and that is Sardar Patel. So he is truly called a nationalist. The national interest was the foremost thing for him. Nothing आपका हमारा किसी का भी किसी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का किसी एक लीडर का इंटरेस्ट उसके सामने बिल्कुल मैटर नहीं करता. ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था. ही वॉज अ रियलिस्ट इन पॉलिटिक्स हु रियलाइज्ड, और जो रियलिस्ट मतलब अगर आप उस समय की पॉलिटिक्स देखेंगे तो उसमें बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो रियलिस्ट थे. हमारी उस समय की पॉलिटिक्स बहुत ही आइडियोलॉजिकल थी. तो आप अभी जब ये वाली बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कैसे वो रियलिस्ट हुई. तो एक रियलिस्ट अगर उस टाइम का हम ढूंढें तो वो सरदार पटेल के ही रूप में हमें नजर आता है कि हर मैटर पे उन्होंने एक रियल स्टैंड लिया कि आइडियोलॉजी को किनारे रखे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड व्हाट इज बेस्ट फॉर फ्यूचर. तो ये सोच कर सारे उनके निर्णय होते थे. कैटलिस्ट का मतलब ये होता है पॉलिटिकल सेंस में, कैटलिस्ट का वो मतलब होता है कि जो सारे जहाँ पर आके सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाते हैं. तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेते थे और जो सारे डिस्प्यूट से ऊपर भी उठ जाते थे. ओके, तो इनको मिला के शॉर्ट में उनको एनसीआर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है. So this is the entire content that has come from the CBSE in the additional study material that I had included in the these two slides. तो ये अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो हो जाएगा. और अब सिर्फ एक टॉपिक चैप्टर में बचता है, दैट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, एंड दैट वुड बी माय लास्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर. ओके, so hope you find this helpful, and keep studying, keep reading, and have a nice day. Thank you. Goodbye.